Hello kids. Again, last class, in previous class we have studied about the what is planning. Just I want to recall you back that planning is the preparation for any action. Means any work which you are doing, which you are going to do, or any goal or objective you are going to find out. You have to what you enlist before doing that activities. Those are called as a planning. That means preparation for any action. In the order same planning, if we talk about the physical education, in physical education the most important aspect is for conducting the tournament. So in conducting the tournament, for conducting any kind of tournament, yesterday we have discussed about that there are certain managerial roles, and we have to make so many groups for conducting a tournament, so many committees. Like one man cannot complete the whole task because it's a big event. So in this way we have the formation of separate committees. Few of the committees which we used to form are I'm going to explain it like that. That is on the screen, and their functions I am going to tell you. First of all, the committees which we are going to form, that is called as a technical committee. Why technical committee? Because it's a most important committee which conduct the event. Means all the ground officials, the team is reaching their advance or not, the time, the preparation, the fixture, everything comes under the prejudice of technical committee. So the technical committee is responsible for conducting the tournament smoothly. Now the second comes that there is a finance committee. The role of the finance committee is to make the budget for an event. कितना खर्चा किस चीज में आएगा, ये काम पूरा फाइनेंस कमेटी करती है. और वो खर्चा, उसका पैसे का जो मैनेजमेंट है, each and everything comes under the finance committee. So the finance committee is responsible for all kinds of payments. The role of the finance committee is also very important in the tournament, because without finance you cannot going to conduct a good and grand tournament. After that comes the number of the reception committee. The reception committee is responsible for the players and the guests, those who are coming from outside. They will welcome those, they will help them to settle for the tournament. And that reception committee will tell them about the different kinds of things, like when the tournament is going to start, it will take to them to the accommodation committee, or it will help them to tell them about the where there is accommodation, at what time they are getting the food, at what time the meeting is going to be held for the tournament, everything. Next comes the term the publicity committee. The publicity committee is the role of wide publicity for the sports event. Like they have to go and give them in the media that this tournament we are going to conduct it. They have to announce in the city that this tournament is going to conduct. They are responsible for preparing the banners and each and everything for the tournament. All the press release and press references, everything this publicity committee does. And even the results also, जो भी results बनता, कौन जीता कौन हारा, every day. If you are conducting an athletic tournament, every day जो publicity committee होती है, ये ले जाके सारी चीजें प्रेस को प्रोवाइड कराती है कि आज ये जीता और ये जीता, और फिर प्रेस रिलीज होता है. इफ इट्स मोर ग्रैंड, टीवी में भी आता है. आफ्टर दैट इट कम्स द अकोमोडेशन कमेटी, द नेक्स्ट नंबर. अकोमोडेशन कमेटी का क्या काम है कि सबका कंफर्टेबल स्टे अरेंजमेंट कराती है, प्लेयर्स का, ऑफिशियल्स का, रेफरीज का, सब चीज. और ये सारी प्लानिंग ये एडवांस में करके रखे. ऐसा नहीं कि कोई भी टीम आया तो आपको दे दिया अभी जाओ, अभी आपको इस रूम में रुकना है, अभी नहीं. एवरीथिंग हैज बीन प्रिपेयर्ड इन द एडवांस. सारी लिस्ट पहले से आ जाती है और अकोमोडेशन कमेटी के पास पहले से होता है कि जैसे ही टीम अराइव करती है उनके पूरा कंफर्टेबल स्टे का अरेंजमेंट अकोमोडेशन कमेटी करती है. आफ्टर दैट कम्स ट्रांसपोर्ट कमेटी. ट्रांसपोर्ट कमेटी टूर्नामेंट से पहले, टूर्नामेंट के बाद, टूर्नामेंट के समय टीमों को ले जाने के लिए, ले आने के लिए, उनके डिपार्चर के लिए, उनके अराइवल के लिए, कोई भी लास्ट टाइम में कोई भी हैशल ना हो, हैशल फ्री ट्रांसपोर्ट हो, इसके लिए पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट कमेटी रिस्पॉन्सिबल रहती है.
आफ्टर दैट इट कम्स द प्राइजेस कमिटी। प्राइज की जो कमिटी होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि जितने भी विनर्स होते हैं, एक्सपेक्टेड विनर्स होते हैं, उनके लिए सारे टूर्नामेंट ट्रॉफीज कप्स लेके आना, सर्टिफिकेट राइटिंग करना, और जितने भी मोमेंटोज और वो सारी चीजें होती है, सब चीज की व्यवस्था करना, एवरीथिंग द प्राइजेस कमिटी यूज्ड टू डू। नेक्स्ट कम द मेडिकल कमिटी। मेडिकल कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेडिकल असिस्टेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टूर्नामेंट। So many times it happens that the players get injured, so the first aid, so the medical committee is responsible for to provide the first aid immediate on the ground. After that अगर कुछ भी कैजुअलिटी हो जाती है तो मेडिकल कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल कि वो उसको सही ट्रीटमेंट के लिए सही जगह हॉस्पिटल लेके जाए। आफ्टर दैट इट कम्स there are after first aid committee also there are so many committees, other you can like refreshment committee, protest committee. Protest committee is also very important, बहुत important role है। like that कभी भी ऐसा लगता है किसी को कुछ भी foul play हो रहा है, any foul play is going on, that so the protest committee is there is a committee, the coaches everyone, the players, there should be a norms laid down for that। वो सभी they will write an application, वो सभी protest committee को लेके जाएंगे। protest committee में already टेक्निकल प्लेयर्स रहेंगे और वो उसमें एक पूरी की पूरी जूरी रहेगी, एंड इट विल डिसाइड अबाउट दैट फाउल प्ले और एनीथिंग एल्स। कुछ भी लड़ाई झगड़ा, एनीथिंग इट हैपेंस, कुछ भी हो जाता है तो द प्रोटेस्ट कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल। द प्रोटेस्ट कमिटी मीन्स इट्स द जूरी ऑफ अपील। सो एनीबडी इफ एनी प्रॉब्लम हैपेंस दे कैन रिगार्डिंग द टूर्नामेंट दे कैन गो एंड अपील टू द प्रोटेस्ट कमिटी, एंड प्रोटेस्ट कमिटी विल बी द डिसाइडिंग बॉडी फॉर दैट। After that comes the ceremony committee. The work of the ceremony committee is to conduct the opening and closing of the ceremony, means opening and closing of the tournament. It is responsible for the prize distribution also. जितना भी लास्ट में कई बार कुछ ग्रैंड फिनाले प्रोग्राम हो रहा है, कुछ भी जो हो रहा है ओपनिंग सेरेमनी में, डांस प्रोग्राम, कुछ भी स्पीचेस, एवरीथिंग ओपनिंग या क्लोजिंग सेरेमनी में दोनों भी, ठीक है, वोट ऑफ थैंक्स, हर काम के लिए सेरेमनी कमेटी ही रिस्पॉन्सिबल होती है। इसी तरह से अगर हम बात करें सेरेमनी कमेटी के बाद, तो ये तो लगभग कमिटीज हो गई कौन कौन से टूर्नामेंट्स में होती हैं। इसी तरह से जब हम कमिटीज का काम डिसाइड करते हैं तो इस काम को भी हम वर्क को भी वी यूज टू डिसाइड इट इन अ 3 पार्ट, क्योंकि द वर्क इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है? प्री मीट वर्कआउट। दैट मीन्स कि टूर्नामेंट से पहले क्या क्या काम करना है, दे हैव टू एनलिस्ट इट। आफ्टर दैट ड्यूरिंग मीट वर्कआउट, एंड आफ्टर दैट पोस्ट मीट वर्कआउट। पोस्ट मीट वर्कआउट का मतलब होता है कि जब टूर्नामेंट खत्म हो जाता है उसके बाद भी बहुत सारे काम होते हैं, उस काम को कैसे कैसे करना है। तो सारी कमिटीज को इस हिसाब से ब्रीफिंग की जाती है, और कि लाइक इफ वी यूज्ड टू गिव एन एग्जांपल कि प्री मीट वर्कआउट में क्या क्या होता है। सबसे पहले काम जो उनका होता है कि टूर्नामेंट का शेड्यूल अरेंज करना, दैट मीन्स टू फिक्सचर। आई विल टेल यू व्हाट इज द फिक्सचर, बिकॉज फिक्सचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ टूर्नामेंट। यही फिक्सचर होता है जो फिक्सचर में ही डिसाइडेड होता है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड कि डेट, टाइम, फाइनलाइजिंग टूर्नामेंट, ग्राउंड, एवरीथिंग। आफ्टर दैट सभी चीजों का बजट प्रिपेयर करना ही प्री मीट टूर्नामेंट्स है। फिर फील्ड्स अरेंजमेंट करना ही टूर्नामेंट है। फिर अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज, जो भी हायर अथॉरिटीज होते हैं उनका फाइनेंस से रिलेटेड, उसके लिए सब ये सारी चीजें प्री मीट टूर्नामेंट वर्क्स में आती हैं। इसी तरह से बात करते हैं ड्यूरिंग द मीट। इसमें प्री मीट वर्क में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे प्लेयर्स का रिफ्रेशमेंट अरेंज करना, सर्टिफिकेट्स अरेंज करना, उनके लिए ट्रॉफीज अरेंज करना, सारी चीज़ें। फिर बात करते हैं ड्यूरिंग मीट वर्क्स का मतलब होता है कि टूर्नामेंट के समय क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, क्योंकि कोई भी टूर्नामेंट का सक्सेस उसी पे डिपेंड करता है कि टूर्नामेंट के टाइम में क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्ले फील्ड में प्रॉपर इक्विपमेंट होना चाहिए, ग्राउंड का अरेंजमेंट उस समय प्रॉपर होना चाहिए, इवेंट्स प्रोग्राम के सभी को मिले रहना चाहिए, जितने भी ऑफिशियल्स हैं, एथलीट्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, सबको प्रोग्राम का इवेंट पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जितनी कमिटीज हैं उनको सुपरवाइज भी करता रहना चाहिए, वेदर ऑल द कमिटीज आर वर्किंग इन अ प्रॉपर वे और नॉट दे आर वर्किंग।
So, and if any hassle is there, they have to look into the matter also. After that, recreation का एटमॉस्फेयर है कि नहीं, लाइक सुबह दिन भर बच्चे वर्कआउट्स करते हैं या टूर्नामेंट में थकान होती है, तो लास्ट में टू मेक देम बिजी, टू मेक देम रिक्रिएट, टू मेक देम एनर्जाइज, रिजुविनेट, वो क्या करते हैं, शाम को कुछ रिक्रिएशन प्रोग्राम्स का भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। ऑफिशियल्स के भी फंक्शन को वो चेक कर सकते हैं, तो इसका भी एक अरेंजमेंट होना चाहिए। जो ज्यूरी ऑफ अपील होता है उनके ऊपर एक सुपरवाइजर या एक कुछ भी एक चीफ रेफरी रख सकते हैं जो नॉर्मल ऑफिशियल्स को सुपरवाइज कर सकते हैं वेदर वर्क इज गोइंग और नॉट। फिर उसके बाद ड्यूरिंग द मीट वर्कआउट में उनके रिफ्रेशमेंट के, ऑफिशियल्स के रिफ्रेशमेंट के लिए, ऑफिशियल्स के लंच और ब्रेक के लिए वो होता है। और उसके बाद मीट वर्कआउट में जो प्रोग्रेस होता है, टूर्नामेंट का प्रोग्रेस और इवेंट को भी वो क्या करते हैं, अनाउंस करते रहते हैं टाइम टू टाइम, अभी ये टूर्नामेंट होना, अभी ये टूर्नामेंट होना, अभी आपका लंच है, अभी आपका डिनर है। तो ये सब सारी चीजें होती हैं। और इसके बाद जब ये भी सुपरवाइज करते हैं कि अगर कोई एथलीट टूर्नामेंट के दौरान इंजर्ड हो जाता है तो उसको फर्स्ट एड कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है। आफ्टर दैट इट कम्स द प्री मीट वर्क। प्री मीट वर्क का मतलब होता है जब भी टूर्नामेंट खत्म हो जाए तब क्या काम। अभी आप बोलोगे जब टूर्नामेंट खत्म हो गया तब क्या काम होता है, लेकिन असली काम और महत्वपूर्ण काम तभी स्टार्ट होता है, द इंपॉर्टेंट वर्क्स व्हेन द टूर्नामेंट्स फिनिश्ड। बिकॉज आपको टूर्नामेंट फिनिश हो जाने के बाद प्रॉपर बच्चे को, मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज्ड टू सी after the tournament finish the hassle starts. क्यों? Because sometimes the name on the certificate is wrong, sometimes the medal and certificates of the position holders, ठीक है, prizes distribution वो कभी कभी प्रॉपर नहीं होता, कुछ नेम मिस्टेक हो जाती है, तो you have to check after that. फिर जो प्रेस नोट होती है, often you usually used to give them कि भूल जाते हो आप कि प्रेस वाले को प्रेस नोट देना है, तो आपको चेक करना है जो भी आपकी पब्लिसिटी कमेटी है कि प्रेस वाले को सही टाइम से सही नाम जा रहा है कि नहीं जा रहा है। फिर आफ्टर दैट आप क्या करते हो, बहुत सारे चेयर्स, टेबल्स, स्टैंड्स, बहुत सारे इक्विपमेंट्स यू बोरो इट। तो उसको जो भी आप बोरो करते हो उसको सही जगह पे पहुंचाना भी आपकी ही इसी कमेटी का मींस जो प्री मीट वर्कआउट्स में ही आता है। आफ्टर दैट जो भी डिफरेंट कमिटीज होती है उनकी वाइंडिंग अप्स को कलेक्ट करना, फिर उसके बाद सभी से टूर्नामेंट के बाद जो है सभी से वो टूर्नामेंट कैसा है उसका एक फीडबैक फॉर्म होता है, वो फीडबैक फॉर्म को भी लेना, ताकि ये फीडबैक फॉर्म व्हेन यू कंडक्ट द नेक्स्ट टूर्नामेंट इट हेल्प्स यू कि क्या क्या कमियां रह गई, क्या क्या अच्छाइयां रह गई, एंड यू कैन वर्क आउट दैट। एंड आफ्टर दैट सभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है कि एग्जैक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करना सभी फाइनेंसेस को लेके, क्योंकि फिर लास्ट में ऐसा हो जाएगा कि बहुत सारी कमिटीज आपके ऊपर कहेंगे कि यहाँ घोटाला हो गया, बड़े बड़े घोटाले आप सुनते हो क्योंकि फाइनेंस के रिपोर्ट्स प्रॉपर नहीं बनते हैं। तो ये भी काम एक जब भी टूर्नामेंट खत्म हो जाता है ये भी काम एक उस कमेटी का होता है। तो ये डिफरेंट कमिटीज जो आपने पढ़ी, ये सब कमिटीज का अपना अपना अलग रोल, अपना अपना रोल है, और इसके ऊपर एक ऊपर चैनल होता है, वो कोई भी हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजर होता है या कोई भी हो सकता है, चीफ सेक्रेटरी होता है जो पूरे वर्क को एक साथ सुपरवाइज करता रहता है। और आप डिफरेंट कमिटीज जब आप फॉर्म करते हो तो आप देखोगे कि आपका टेंशन फ्री हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों में लीडरशिप निखर के आता है, और टूर्नामेंट भी बिल्कुल हैशल फ्री एकदम स्मूथ वे में कंडक्ट होता है, और हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स होती है। तो दीज आर द डिफरेंट कमिटीज। सो स्टूडेंट्स, इट्स माय रिक्वेस्ट, जब भी आप भी घर पे कुछ भी प्रोग्राम करें, कुछ भी इवेंट करें, सो यू शुड आल्सो थिंक ऑफ ऑल दीज थिंग्स टू अवॉइड हैशल फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ हैशल, और एनी कुछ भी टूर्नामेंट में कुछ भी अवरोध हो, कुछ भी ऑब्स्टिकल हो, आप खुद इस कमिटीज को फॉर्म कर सकते हो। किसी भी इवेंट के लिए अलग अलग कमिटीज का फॉर्मेशन कर सकते हो। जरूरी नहीं कि अगर घर पे कोई प्रोग्राम हो तो ये कमिटीज के नेम चेंज भी हो सकते हैं, बट इट विल हेल्प यू इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम। अब जैसा कि डिस्कस किया था, ये तो पार्ट होगा कि कौन कौन सी कमिटीज फॉर्म होती है जब हम कोई टूर्नामेंट कराते हैं। अब इसी में हम बात करते हैं सबसे पहले टूर्नामेंट की, कि टूर्नामेंट कराना है तो टूर्नामेंट है क्या। ठीक है, अगर एक सिंपल लाइन में देखें कि टूर्नामेंट क्या है,
तो टूर्नामेंट की बात करें तो टूर्नामेंट ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बट इट्स अ नेचुरल क्लाइमैक्स टू द ईयर्स वर्क। होता है क्या है कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो साल भर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक। अब साल भर प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस कितनी फ्रूटफुल है, कितना किस उस पे जा रहा है, फाइनल राउंड पे जा रहा नहीं, अच्छा जा रहा नहीं, तो ये क्या करते हैं एक उनके क्वेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए, एक जो कंपटीशन होता है उस क्वेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए एक बेस्ट वे में दे कंडक्ट द टूर्नामेंट। इसको आप कैसे भी कह सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम ऑफ टूर्नामेंट, किस तरह का आप टूर्नामेंट खेलना चाहते हो। कई बार स्कूल लेवल टूर्नामेंट होता है, नेशनल लेवल होता है, फिर कॉमनवेल्थ गेम्स होता है, ओलंपिक गेम्स होता है। इट डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा टूर्नामेंट है, कितने प्रकार, कौन सा टूर्नामेंट है और किस लेवल का टूर्नामेंट है, उसी हिसाब से कंपटीशन होता है। बिकॉज एंशिएंट टाइम्स में क्या होता था, अगर आप जाओ तो लोग अपनी जीत को जाहिर करने के लिए एक दूसरे को मारते थे, ये करते थे, कुछ भी, ठीक है, बट दैट इज नॉट द नेचुरल वे ऑफ द कंपटीशन। सो टू सेटिस्फाई द क्वेस्ट फ्रॉम द एंशिएंट वे, अ मोर सिविलाइज्ड फॉर्म हैज बीन कम, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टूर्नामेंट, ठीक है। और देयर आर सर्टेन नॉर्म्स लेड डाउन फॉर द टूर्नामेंट एंड टीम हैज टू obey for it. Maybe there may be certain skills, tactics, strategies, सारी चीजें होती हैं और इसमें जो है आपको उन सब चीजों को फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि एंशिएंट टाइम्स में क्या होता था, जब भी किसी को लगता था वो ताकतवर है, ही हैव टू सेटिस्फाई हिज क्वेस्ट, अपना कॉम्पिटिटिव होता था, वो एक दूसरे पे आक्रमण करते थे, एक दूसरे को मारते थे, एक दूसरे पे जीत दर्ज करते थे। बट मॉडर्न एरा में, जिसको हम लोग सिविलाइज्ड पीरियड कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अपनी क्वेस्ट को, अपनी नेचुरल कॉम्पिटेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए एक नया उसका हुआ, दैट इज कॉल्ड एज टूर्नामेंट। अब साल भर क्या मेहनत करते हो, जिससे इसी टूर्नामेंट के माध्यम से वी यूज टू डिसाइड दैट हु इज द विनर और हु इज द रनर और हु इज द लूजर, यू कैन से। सो इट्स द स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशंस। अब बात करते हैं इसी टूर्नामेंट की। तो टूर्नामेंट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि कुछ चीजों को बेस्ट, जो इंपॉर्टेंस ऑफ द टूर्नामेंट है वो है कि टूर्नामेंट के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या क्या है, ये क्या हेल्प करता है आपका। सबसे पहले इट डिसाइड्स द बेस्ट, कि रैंकिंग में सबसे बेस्ट कौन है। इट डिस्प्लेज योर अचीवमेंट, आपकी अपॉर्चुनिटीज, आपकी एबिलिटीज, आपकी स्किल्स को ये क्या करती है, प्रदर्शित करती है। इट शोज skills and all that. Recreation, it rejuvenates yourself, it recreates yourself and spectators also. और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट डेवलप द सोशल क्वालिटीज। जैसे ही टूर्नामेंट होता है, आपकी पार्टिसिपेशन होती है, आप बहुत सारी स्किल्स लर्न करते हो, आपका कॉन्फिडेंस, पंक्चुअलिटी, एटीट्यूड, बहुत सारी चीज़ें इससे इंप्रूव होती है। दैट कम्स अंडर ग्रुप कोहेसिवनेस, लीडरशिप डेवलप होती है, सारी चीज़ें टूर्नामेंट के दौरान ही डेवलप होती है। एंड आफ्टर दैट डेवलपमेंट ऑफ यूनिटी एमंग डाइवर्सिटी। डेवलपमेंट ऑफ यूनिटी एमंग डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि अलग अलग कास्ट, क्रीड और रीजन के लोग खेलते रहते हैं, बट वो एक साथ, एक सब जीतने के लिए, लेकिन पीसफुल वे में, एक साथ गोल ओरिएंटेड होके और एक साथ स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करके, और वो लोग एजुकेटेड वे में नॉर्म्स, रूल्स सब फॉलो करते हुए और फ्रेंडशिप वे में वो टूर्नामेंट्स को खेलते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ फेयर प्ले। नियमों का पालन करते हैं, भले अलग अलग जगह से आए होते हैं बट एक ही चीज को मानते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज अ यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी। आफ्टर दैट टूर्नामेंट्स आर नाउअडेज अ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू जनरेशन ऑल्सो। रेवेन्यू जनरेशन का मतलब है बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं जिसमें आप देखिए बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है और बहुत सारे लोगों को इससे जॉब भी क्रिएट होती है, जॉब मिलती है और रेवेन्यू जनरेशन होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, जब भी कोई टूर्नामेंट होता है तो उसमें सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, दैट इज अ फिक्सचर। कि टूर्नामेंट होगा तो कैसे पता चलेगा फिक्सचर, कि कैसे टूर्नामेंट होना है, कहाँ होना है। तो आपको इसके बारे में इसकी डेफिनेशन बता दें कि फिक्सचर क्या है। सिंपल वर्ड्स, इट्स द सिस्टमेटिक ऑर्डर। फिक्सचर इज अ सिस्टमेटिक ऑर्डर ऑफ वेरियस ग्रुप्स फॉर कॉम्पिटिटिव फाइट्स फॉर द एक्टिविटी, फॉर द फिजिकल एक्टिविटी। मीन्स जितने भी अलग अलग ग्रुप आते रहते हैं उनका एक स्लॉट बना दिया जाता है कि कौन किसके साथ कॉम्पिटिटिव फाइट करेगा। इट इज द मीन्स, अगर इन अ सिंगल लाइन इफ यू सी दैट इट इज द
it is the setup. It is the setup of various teams for competitive matches, जिसमें आपको सारी चीजें फिक्सचर में ही मिलती हैं। सारी चीजें मिलने का मतलब है कि सारी चीजें मिलने का मतलब है कि उसमें टाइम होगा, उसमें ग्राउंड, कौन से ग्राउंड में होना है, कहाँ होना है, कितने बजे होना है, आपका अपोनेंट टीम कौन सी है, हर एक चीज का लेखा जोखा मिलेगा। दैट इज कॉल्ड एज अ फिक्सचर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंडक्टिंग एनी काइंड ऑफ टूर्नामेंट। अगर बात करें टूर्नामेंट की तो इसके लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है। जैसे फॉर फिक्सचर्स की बात करें तो कुछ चीजों की बहुत जरूरत होती है, या टूर्नामेंट की बात करें तो कुछ चीजों की बहुत, जैसे नेचर ऑफ एक्टिविटी कौन सी है, कौन कितनी टीमें पार्टिसिपेट करती है, नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं आपके पास ग्राउंड की अवेलेबिलिटी कितनी है, इक्विपमेंट कितना है, कितने दिन का टाइम है आपके पास, हाउ मेनी डेज यू हैव टू फिनिश द टूर्नामेंट, हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑफिशियल्स आपको चाहिए और आपके पास कितने उपलब्ध हैं, आपके पास कितना, ये सारी चीजों को ध्यान में रख के ही फिक्सचर को अरेंज किया जाता है तो कॉम्पिटिटिव मैचेस के लिए। अब स्टूडेंट्स, नाउ वी आर टॉकिंग, अभी तो आप जान लिए कमिटीज क्या होता है, टूर्नामेंट क्या होता है। अब जो इंपॉर्टेंट है वो टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, हम टूर्नामेंट के बारे में पढ़ेंगे कि टूर्नामेंट कितने टाइप का होता है। अगर जनरली हम बात करें तो टूर्नामेंट जो है वो, वैसे तो आप स्टडी करते हो 4 प्रकार का टूर्नामेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो पढ़ते हो, सबसे पहला टूर्नामेंट होता है नॉकआउट टूर्नामेंट, सेकंड टूर्नामेंट होता है जो वो लीग टूर्नामेंट, आफ्टर दैट इट कम्स द कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ टूर्नामेंट, देन इट कम्स द चैलेंज टूर्नामेंट, जिसको अमूमन लैडर टूर्नामेंट भी कहते हैं। लेकिन इसमें और भी कई प्रकार होते हैं, जैसे जिसको पिरामिड टाइप टूर्नामेंट कहते हैं, या लीग में भी सिंगल लीग, डबल लीग, ऐसे बाइफर्केशन टूर्नामेंट्स के होते रहते हैं। सो हम प्रमुख रूप से 4 प्रकार के टूर्नामेंट्स पढ़ेंगे, और आपके जो है नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, आफ्टर दैट कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ टूर्नामेंट एंड चैलेंज टाइप ऑफ टूर्नामेंट। और जिसमें 2 की स्टडी होगी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नॉकआउट टूर्नामेंट और लीग टूर्नामेंट, जो वेरी इंपॉर्टेंट है और अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। अब बात करते हैं कि नॉकआउट टूर्नामेंट्स में, कि नॉकआउट टूर्नामेंट है क्या। तो नॉकआउट टूर्नामेंट सिंपल से है, जिसको एलिमिनेशन टूर्नामेंट कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज अ एलिमिनेशन टूर्नामेंट। इसमें क्या होता है कि जो भी टीम एक बार हार जाती है वो बाहर हो जाती है। क्लियर कट शब्दों में, द टीम which gets defeated gets eliminated, and the team which continue its win, it goes into the further round of the tournament till it is not declared as the, till it is not defeated or it is declared as the winner। मतलब वो जो भी टीम जीतती है वो कंटिन्यूअस टूर्नामेंट खेलती रहती है जब तक कि या तो वो हार के बाहर ना हो जाए या वो लास्ट में विनर डिक्लेयर ना हो जाए। तो ऐसे टूर्नामेंट्स को नॉकआउट टूर्नामेंट कहते हैं। मींस कि द टीम कंटिन्यूज टू प्ले फर्दर मैचेस एज पर द शेड्यूल टिल इट गेट्स डिफीटेड। जब तक वो हार ना जाए वो टूर्नामेंट कंटिन्यूस खेलती रहती है। अब बात करते हैं कुछ एडवांटेजेस की नॉकआउट टूर्नामेंट की एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है नॉकआउट टूर्नामेंट का, कि जो एक्सपेंडिचर है, चूंकि टीम हारती जाती है, बाहर होती जाती है, तो नंबर ऑफ मैचेस नॉकआउट टूर्नामेंट्स में कम होते हैं। तो व्हेन द नंबर ऑफ मैचेस आर लेस, सो व्हाट हैपेंस, द एक्सपेंडिचर फॉर द नॉकआउट टूर्नामेंट इज also less, and after that the less time is also required, the fewer days are required to complete the tournament। कुछ ही दिन की आवश्यकता होती है, बहुत लंबा ये टूर्नामेंट खिंचता नहीं है। and after that less officials are needed, but sometimes what happens कि जो भी होता है एलिमिनेशन होता है कई बार, जो इसका एक डिसएडवांटेज है कि जो भी वीक टीम होती है वो बाहर हो जाती है, क्योंकि जो अच्छी टीम होती है वो अपना क्या करती है, सभी एलिमिनेशन उनके मन में होता है कि वो अपना एलिमिनेशन का बेस्ट अपना एग्जिबिट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कई बार क्या होता है अच्छी टीम में भी एक मैच में परफॉर्म नहीं करती और वो बाहर हो जाती हैं। तो ऐसे इसके कुछ
डिसएडवांटेज है, जैसे कोई भी टीम जो भी फर्स्ट राउंड में अगर टीम अच्छी है लेकिन वो किसी भी कारणवश फर्स्ट राउंड में अच्छा नहीं कर पाई तो वो टीम बाहर हो जाती है, जिसको कहते हैं कभी कभी लक साथ नहीं देता है। तो नॉकआउट टूर्नामेंट्स में कभी कभी लक भी साथ चलता है, और क्योंकि इसमें बहुत सारी इनकेस क्लाइमेट या पुअर प्लेइंग कंडीशंस कुछ भी हो सकता है, तो बेटर टीम क्या होती है, वो एलिमिनेट हो जाती है। अब इसी तरह से बात करते हैं तो लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट्स की। जो लीग टूर्नामेंट होता है या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे नॉकआउट टूर्नामेंट में जो टीम हारती है वो बाहर हो जाती है जब तक कि वो लास्ट में पूरी जीत न जाए। सेम लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में टीम को हारने या जीतने से कोई मतलब नहीं होता है, उसमें नंबर ऑफ मैचेस होते हैं, और द टीम जो होती है राउंड रॉबिन में, इसको लीग टूर्नामेंट को ही राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं। टीम तब तक अपना मैच खेलती रहती है जब तक कि उसके नंबर ऑफ मैचेस कंप्लीट नहीं हो जाते। इसमें जीतने या हारने से कोई मतलब नहीं होता है। तो ऐसे टूर्नामेंट्स को लीग टूर्नामेंट कहते हैं। दैट मीन्स कि in league tournament every team has to play with every other team irrespective to win or to defeat or to draw. I repeat it, in league tournament every team has to play with every other team irrespective of win or defeat और ड्रॉ। मतलब टीम तब तक टूर्नामेंट खेलती रहेगी, उसको टीम जब तक कि उसके नंबर ऑफ मैचेस कंप्लीट नहीं हो जाते, उसको जीतने से, हारने से या ड्रॉ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें हारना, जीतना और ड्रॉ होना पॉइंट सिस्टम पे डिसाइड करता है। जो मेन अब इसके कुछ ऐसे ही, जैसे जो डिसएडवांटेज थे, ऐसे ही कुछ एडवांटेजेस हैं लीग टूर्नामेंट के। जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अर्ली एलिमिनेशन का फियर जो होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, और जो अच्छी टीमें होती हैं, द बेटर टीम्स जो होती हैं, वही फाइनल तक पहुंचती है। एक आध मैच अगर हार भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दे गेट द अनदर अपॉर्चुनिटी टू प्ले। फिर नेक्स्ट इज एवरी टीम, जो नॉकआउट में नहीं मिलता है, एवरी टीम गेट्स सफिशिएंट टाइम टू एग्जिबिट इट्स परफॉर्मेंस। हर टीम को कई नंबर ऑफ मैचेस मिलते हैं। इसमें जो होता है एक्सपेक्टेटर्स जो होता है, वो उनको भी लॉन्गर टाइम होता है और वो ज्यादा से ज्यादा टूर्नामेंट को एंजॉय कर सकते हैं। प्लेयर्स भी अपनी बेस्ट स्किल दिखा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कुछ भी अनवांटेड एक्टिविटीज या इंसिडेंट मैच के दौरान होते हैं, तब भी कुछ ना कुछ एक स्कोर उनको दिया जाता है। टीम ड्रॉ हो गया, कुछ ऐसा हो गया तो एक एक का स्कोर उनको दे दिया जाता है। लेकिन इसके साथ ही कुछ बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं लीग टूर्नामेंट के। डिसएडवांटेजेस कैसे हैं? जो नॉकआउट में एडवांटेजेस थे वो यहाँ की, क्योंकि लीग टूर्नामेंट है, सभी नंबर ऑफ मैचेस ज्यादा खेलेंगी, हारने वाली टीम बाहर नहीं होगी तो नंबर ऑफ मैचेस ज्यादा होंगे, तो आपको ज्यादा समय चाहिए, और ज्यादा समय चाहिए, ज्यादा दिन टूर्नामेंट चलेगा तो ज्यादा पैसा भी, एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेस। फिर आपको नंबर ऑफ ग्राउंड्स भी ज्यादा चाहिए, ऑफिशियल्स भी ज्यादा चाहिए, ग्राउंड और कोर्ट्स भी ज्यादा होते हैं। और कभी कभार क्या होता है ऐसे टूर्नामेंट्स में, चूंकि ये ड्यूरेशन लंबा होता है, तो जो अच्छी टीमें होती हैं उनके प्लेयर इंजर्ड हो जाते हैं, और इंजरी अभी कुछ समय बाद ही, जैसे आपका टूर्नामेंट है तो वो एक ड्रॉबैक में होता है, कोई उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है तो वो ड्रॉबैक में ही काउंट होता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो लीग टूर्नामेंट के हैं। अब इसी तरह से बात करते हैं लीग टूर्नामेंट्स। जो नेक्स्ट टूर्नामेंट होता है वो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होता है। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का मतलब होता है कि दोनों को मिक्स कर दो टूर्नामेंट को। जैसे लीग टूर्नामेंट की भी बात करें तो लीग टूर्नामेंट भी अमूमन दो प्रकार के होते हैं, दैट इज सिंगल लीग और डबल लीग। हम जब एक्सप्लेन करेंगे लीग टूर्नामेंट कैसे होता है तो उसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी नेक्स्ट टाइप का टूर्नामेंट होता है वो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होता है। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का मतलब जिसमें दोनों टाइप ऑफ मैचेस को मिक्स कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल ये जनरली इट इज ऑफ 4 टाइप्स, कि सबसे पहले लीग कराएं फिर नॉकआउट कराएं।
कोई भी अगर आपके पास कुछ टीम है तो पहले हम लीग करा देते हैं, जैसे आपके पास यू हैव 6 टीम्स तो 6 टीम्स का लीग करा देंगे, बेस्ट 4 निकाल लेंगे और उनका नॉकआउट मैचेस करा देंगे। सेम इट इज कॉल्ड एज ए लीग कम नॉकआउट। सेकंड, इन द सेम वे नॉकआउट कम लीग। नॉकआउट कम लीग का मतलब है कि पहले नॉकआउट टूर्नामेंट कराएंगे, उसके बाद बेस्ट 4 है उनमें लीग करा देंगे। ये टूर्नामेंट उन दोनों से ज्यादा बेहतर है क्योंकि आपको क्योंकि आप उन टूर्नामेंट्स के बीच का जो वहां पे डिसएडवांटेज है वो यहाँ पे एडवांटेज आ जाता है और प्लेयर्स हर चीज प्रॉपरली एग्जिबिट कर, अपने फिजिकल स्किल्स को प्रॉपरली एग्जिबिट कर सकते हैं। आफ्टर दैट इट कम्स द नॉकआउट कम नॉकआउट। नॉकआउट कम नॉकआउट का मतलब है कि टीम अलग अलग जोन्स में डिवाइडेड है, ज्यादा नंबर ऑफ टीम्स है तो उसको अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर दिए हैं और उनको नॉकआउट मैचेस कराया। हर जोन्स में से 2-2 टीम बेस्ट निकाल लिए और फिर उनका आपस में नॉकआउट मैचेस करा दिए। इन द सेम वे लीग मैचेस और ऑल्सो देयर, जब नंबर ऑफ टीम्स ज्यादा है और हमें लीग मैचेस कराने हैं तो हम क्या करेंगे, टीम को अलग अलग जोन्स में बांट देंगे, उनका लीग करा देंगे, वहां से फिर कुछ टीमें निकालेंगे और फिर से उनका लीग टूर्नामेंट कराएंगे। इन द सेम वे अनदर टाइप ऑफ टूर्नामेंट दैट इज कॉल्ड एज अ चैलेंज टाइप ऑफ टूर्नामेंट। जो चैलेंज अनदर टाइप ऑफ टूर्नामेंट दैट इज कॉल्ड एज अ चैलेंज टाइप ऑफ टूर्नामेंट। जो चैलेंज टाइप ऑफ टूर्नामेंट होता है, ऐसे टूर्नामेंट में जनरली ये ऐसी जगह होता है जहां रैंकिंग्स डिसाइडेड होती हैं कि प्लेयर्स की रैंकिंग डिसाइड हो और वहां एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को क्या करता है, चैलेंज करता है और अपनी रैंक्स को डिसाइड कर लेता है। ऐसे टूर्नामेंट को लैडर टूर्नामेंट भी कहते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे जनरली लॉन टेनिस या इस तरह की चीजें होती हैं, एक टीम जो नीचे के सेक्शन वाली टीम होती है, जो नीचे की रैंकिंग वाली टीम होती है, वो ऊपर के रैंकिंग को चैलेंज करती है और चैलेंज करने के बाद ये जनरली रैंकिंग के लिए होता है। ये इट हैपेंस इन द फॉलोइंग गेम लाइक बॉक्सिंग, जूडो, टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन। जहां भी ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड रैंकिंग्स होती है, वहां इंडिविजुअल क्या करते हैं, खुद एक दूसरे प्लेयर को चैलेंज करते हैं एंड दे चेंज देयर रैंकिंग्स। आपने कई बार सुना भी होगा कि दूसरी वरीयता प्राप्त, तीसरी वरीयता प्राप्त, चौथी वरीयता प्राप्त, 5वीं वरीयता प्राप्त। तो ये जो वरीयता प्राप्त वर्ड है, इट कम्स फ्रॉम द चैलेंज टूर्नामेंट ओनली, जिसको लैडर विधि भी कहते हैं एंड इट हैपेंस इंडिविजुअल वहां से रैंकिंग सिस्टम में होता है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें हम जो है पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि फिक्सचर्स को कैसे ड्रॉ करते हैं। अभी तक आपने जो पढ़ा है वो प्लानिंग क्या होती है, डिफरेंट कमिटीज क्या होते हैं, टूर्नामेंट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स क्या क्या होते हैं, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। लेकिन इसके बाद हम आपको ये बताएंगे फिक्सचर्स। अभी आपने जो पढ़ा था कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट्स ऑफ द टीम्स इनटू ग्रुप्स फॉर कॉम्पिटिटिव फाइट्स, दैट इज कॉल्ड एज अ फिक्सचर्स। तो फिक्सचर्स कैसे बनाना है, जो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पार्ट का, दिस वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो और इन द नेक्स्ट क्लास। उसमें आपको बताएंगे फिक्सचर्स क्या है, सीडिंग्स क्या है और सारे फिक्सचर्स बनाए कैसे जाते हैं, टीम का डिवीजन कैसे होता है, इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कैसे किया जाता है। होप आप सब इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप पहले से देख लेंगे बुक में कि क्या क्या चीजें हैं, तो व्हेन आई विल सेंड माय नेक्स्ट वीडियो you will understand it in very short time. Hope for today's video this is enough. For any query, feel free to call us. You can message me on the WhatsApp also, as you are in our group. Thank you. Have a nice day.